build you in the various opportunities that you will have to take. Okay, so most important point is that health. Okay, so during those 4 years it is very important to focus on your health. Okay, so the next one is your personality development. Okay, so the most important part is that you have to develop your personality. That is very important for when someone hire you as a we can say one of the your job. When someone hire you in the job, so you have to be very your personality should be very improved. Okay, so for that purpose what we need to do, that is stage theory. Okay, so we have to develop the stage theory for from the first year. Okay, whatever for that stage theory, for the sake of personal development, whatever the options which will come up to you, you have to take that option. Okay, whether it may be your speech competitions, whether it may be your seminar competitions, okay, whether it may be your poster presentation, oral representation skill, whatever it may be, you have to develop your own personality by developing the stage daring. That is the one of the most important thing that you have to adopt in those 4 years. Okay, then you have to build up your leadership quality. Okay, so this is the most important thing that every industry is looking for the employee having the leadership quality, because you have to work in a team. Okay, in the sector of your, we can say, pharmacovigilance. Okay, we can say the clinical data management, you have to work with a team. Okay, so leadership quality must be built up in your own personality. Okay, so for that purpose you have to involve, you have to get involved in the various curriculum activities. Okay, various culture and events in your institute. Then the most and most important thing you have to develop, that is your English fluency. Okay, so whatever that come up to you. Okay, whether it may be your English newspaper reading. Okay, listening the interviews. Okay, listening or start try to speak with your own. Okay, try to develop your own fluency in English. Okay, so whatever it may be, try to listen various types of news, try to get the news, English news, whatever it may be, you have to develop your English fluency. Otherwise, definitely your confidence will be low in front of, and when you will appear for the interview, definitely your confidence will be low. Okay, so then the most important thing you have to develop, that is your decision making power. Okay, and that we have to develop from those 4 years. Okay, then your mental strength, your maturity, that is the very very important thing. Okay, so whatever the negative thoughts, whatever the the things that are useless for you. Okay, so don't focus on that particular things. Okay, so go with the positive things and the things that are really important for you. Okay, then the time utility. Okay, so the time utility is the most important point. You have to utilize your time. Okay, in the very productive things. Okay, or the creative things. Okay, so what are the creative things you will come to know in the next slides. Okay, but you have to use your time in your personal development, in your health improvement. Okay, in your English fluency. Okay, so you don't have to misutilize your time. Then the most important point is that your good observation skill. Okay, so ये क्यों हमें इतना important है कि why there is a need to develop your good observation skill. Okay, because the most important thing is that whether it may be in your institute or anywhere you have to go. Okay, but आपने देखना चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन कहाँ भी आप जाओ, आप अगर आपको मेडिकल शॉप अगर जानी है आफ्टर बी फार्मेसी. ओके, सो यू हैव टू गो टू द मेडिकल. ओके, सो ट्राई करो कि वहाँ आप बैठ सको. ओके, ट्राई करो कि 1-2 महीना, 1 महीना, 2 महीना आप एक्सपीरियंस गेन करो, वहाँ का नॉलेज गेन करो. ओके, वो कैसे ऑर्डर करता है, कैसे माल आते हैं, जो मटेरियल है वो आता है आपके पास में. सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट थिंग्स. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व योर सीनियर्स कि वो सीनियर्स अगर अच्छे हो गए. ओके, अगर सीनियर आपके अच्छे हो गए, कोई करियर पर फोकस कर रहे होगे तो कैसे करते हैं. ओके, कैसे वो पर्टिकुलर चीज पे फोकस्ड आउट है. ओके, कैसे पढ़ाई करते हैं. अगर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज कोई किसी से क्लास लगा रहा है, किसी गेन कर रहा है, तो क्या क्या कर रहा है. ओके, सो यू हैव टू डेवलप योर ऑब्जर्वेशन स्किल एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप अवर करियर. Okay, and the last thing which will be having the knowledge. Okay,
So your all pharmacy books, starting from your pharmaceutical analysis, okay, starting from your pharmaceutics, whether it may be. I'm not saying that things that are only related to pharmacy, but you have to develop your current affairs knowledge also. Okay, if anybody is willing to appear for your competitive examinations, okay, so for that purpose, you need to update. You need to develop your own thinking, own views on the particular events that are going on daily. ओके सो तुम्हारा एक ओपिनियन होना चाहिए कोई भी चीज आप पढ़ते हो सुनते हो डेली में ओके तो उसके खुद पे तुम्हारा एक ओपिनियन डेवलप होना चाहिए ओके अगर किसी ने भी आपको बोला कि 2 मिनट आपको इस चीज पे बोलना है ओके सो यू हैव टू डेवलप योर ओन नॉलेज यू हैव डेवलप योर ओन व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स ओके सो कभी भी ये चीज ध्यान रखो कि फार्मेसी के साथ साथ में आपको बाकी चीजों का भी नॉलेज अपडेट ओके फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू कर अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपको बेसिक फार्मास्यूटिक्स फार्मेकोलॉजी ये सारी चीजें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए और आपको उसका नॉलेज जो है अच्छे से बिल्डअप करना चाहिए पढ़ना चाहिए ओके जस्ट आप अगर पढ़ते रहे एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज तो आपको डेफिनेटली वो बातें 4 या 5 साल के बाद भी अगर आप चाहो तो उसकी डेफिनेटली आपको याद आएगी देन the most important thing we have discussed that what how we can build up our time or how we can make our time to be more productive okay so for that purpose what we need to do okay so attend the conferences from the second year attend the conferences from the third year attend the various guest lectures that are going on out of your institute in our institute okay so जाओ बाहर के वर्ल्ड को यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू द एटमॉस्फेयर ओपन एटमॉस्फेयर व्हिच इज गोइंग outside your institute okay so that is the most important point okay so for that purpose I have already discussed that you have to participate in what you can say poster presentation oral presentation scheme okay you have to go for the guest lecture okay then if you have the some network in the industry okay then also in the final year you can try for it okay you can complete your project in the industry also okay so for that purpose what are the contacts you want to maintain use it okay so that is the most important point okay so what we can do in those 4 years now we have to have some idea about the NIPER exam what is NIPER okay the most important exam for is the GPAT graduate pharmacy record test okay from the first year you will be updated or you should be updated regarding that competitive examinations okay then what is CSIR Council of Scientific Industries Scientific and Industrial Research okay then what are the other institute like the BITS Bilani okay so you have to have the some knowledge regarding those competitive examinations that you have to go for it after your B Pharmacy okay then what are the various institutes that where we can take the admissions for completion of your PG okay so what are the well known reputed institutes okay so that we have we should have an idea regarding that sort of things okay then again the most important point is that you have to open the account in the pharma tutor आपको pharma tutor पे आपकी जो मेल आईडी है वो लिंक अप करके रखना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज pharma tutor पे जो है pharma tutor पे आपको करंट अफेयर्स जो है जो फार्मेसी में चल रहे हैं करंट जॉब जो है उसकी जो कंटिन्यूअस आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके मेल आईडी पे आती है ओके सो अगर किसी ने फार्मा ट्यूटर पे अगर लिंक नहीं किया है ओके सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू लिंक अप योर ईमेल आईडी टू द फार्मा ट्यूटर ओके देन these are again the website that will focused out the various things that is the GPAT India what is GPAT okay so again you have to go for the Pharma Wisdom okay Pharma Wisdom it is the site where after the form the various companies upload their vacancies on that particular site that the Pharma Wisdom okay so you have the idea or you have the knowledge regarding those things then the most important thing which you have to go after the third year okay or in the final third or final year that is your writing of your research or the reading of your various research articles okay in the pharma we can say so what you need to do you need to search only Google what is PubMed okay what is the Science Direct okay what are the elsewhere journals okay so you have to focus so what extract you have to हमें पता होना चाहिए कि
तो आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च आर्टिकल आते हैं, उनसे हमें फोकस आउट करना है। तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इसका हमें पढ़ना है। रिसर्च आर्टिकल आपको पढ़ना है, रिजल्ट कंक्लूजन क्या होता है, नए नए जो आर्टिकल्स डेली अपडेट होते हैं, आर्टिकल्स डेली बेसिस पे, ओके, और मंथली बेसिस पे। तो जर्नल आप कोई भी लाइब्रेरी से निकालो, उसे पढ़ो, ओके। इससे क्या होगा, आपको लग जाएगी कि एग्जैक्टली आपने भी अगर एक आधा प्रोजेक्ट अगर किया है फार्मेसी में, तो फाइनल ईयर में या फिर थर्ड ईयर में आपकी दिमाग में बात चलते रहती है, उस पर आप कभी भी उसको फोकस आउट नहीं करते। सो फॉर दैट पर्पज और फॉर दैट नीड you have to focus on how the research paper is to be written out, okay? कैसा लिखना है आपने वाटर मैन्युस्क्रिप्ट, ओके, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, रेफरेंसेस कैसे पढ़ना है, ओके, यू हैव टू गो फॉर द लिटरेचर, किसने वर्क किया है, क्या क्या वर्क किया है, एंड देन यू हैव टू डेवलप सम आइडिया इन योर माइंड, ओके। सो फॉर रिसर्च पेपर go for the various journals, okay? Go to the elsewhere journals, what is science direct, okay, what is PubMed, ये सारी बातें आप कब समझते हो, जब एमकॉम में आप एडमिट होते हो, तब आपको ये सारी बातें समझ में आती है। लेकिन जब आप सेकंड या थर्ड ईयर में हो, तभी से आपको जो चीजें हैं, यू हैव टू डेवलप द थिंग्स, यू हैव टू इनोवेट योर नॉलेज एंड यू हैव टू फोकस आउट इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। For that purpose, you have to attend the conferences, okay, national or international conferences, whether it may be, okay. So you have to explore yourself. Then you can refer the site, that is the www.sciencedirect.com, okay, and some other sites are also given. Then the most important thing कि हमें ये पता नहीं होता है कभी भी कि हम जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में होते हैं, तब हम किसी भी यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो है हम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं होता, ओके। सो ट्राई टू नो दैट थिंग्स ड्यूरिंग दैट 4 years, ओके, सो वेयर आई कैन अप्लाई to get the funding for my project work, okay. So for that purpose you have to google out all that things, okay. So I have already discussed that you have to know CSIR, okay, Council of Scientific and Industrial Research। इसके बारे में मैं जब exactly various exams आएंगे तब इसके बारे में बात करूंगा, okay। So again TIFR, ओके, टाटा की जो फेलोशिप होती है, या फेलोशिप का मतलब कोई भी वर्कआउट कैरी आउट करने के लिए यू विल गेट सम ऑफ द फंड, ओके। स्कॉलरशिप जैसा होता है, इसको हम फेलोशिप बोलते हैं। अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क कैरी आउट करना चाहते हो, ओके, सो आपने अगर प्रपोजल लिखा और वहां पे भेजा, तो आपका प्रपोजल अगर अप्रूव हुआ, तो फॉर दैट वर्क आपको क्या मिलती है, फेलोशिप मिलती है। सो फेलोशिप कहाँ पे मिलती है, ऐसे कौन से प्रोग्राम्स है कि जहाँ पे हमें फेलोशिप के लिए जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू नो इन द थर्ड एंड फाइनल ईयर, ओके। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन फेलोशिप के बारे में अगर देखा जाए तो ACSIR, दैट इज द डॉक्टर अब्दुल कलाम समर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। अब इसमें क्या है, दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड वन ऑफ योर समर working at the premier research laboratory, that is the CSIR साइंटिस्ट के साथ में, ओके। तो इसके लिए, ये फेलोशिप के लिए आपका एक खुद का कोई तो भी रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ओके। सो व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल मतलब आपका एक आधे स्पेसिफिक चीज पे आप अगर फोकस आउट करना चाहते हो, किसी चीज पे आप रिसर्च करना चाहते हो, वेदर इट मे बी सम ऑफ योर न्यू फॉर्मुलेशन, you have the idea in your mind, okay। अगर उसको अगर एक्सप्लोर आपको करना है तो you have to write a proposal, okay, और उसको वहाँ पे भेजना है आपको, then it will be approved, okay, and then you will get the time, you will get the opportunity to spend some of your time with the premier researcher that are working in the CSIR, okay। so इसके लिए आपको जब तक कि आप 2 या 3 महीने जब जाते हो, ड्यूरेशन 2 मंथ का होता है इसके लिए, तो आपको नियर अबाउट 25,000 इसके लिए जो है मंथली जो है उसको आपको फेलोशिप जो है वो मिलती है, ओके। और जो आपके वर्क पर वर्क कर रहे हैं, उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलती है, ओके। सो दैट इज द ACIR डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समर ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गो फॉर योर अप्लाई टू द कॉलेज, ओके। जो भी सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस आपको करना है, आपके प्रिंसिपल सर से जो है आपको लेटर लेना है, और वहाँ पे जाके लेटर के साथ में आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वहाँ पे आपको देना है, ओके। एंड देन वहाँ से आपको जो है आपके वर्क के लिए अप्रूव हो जाएगा, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, ओके। सो ये चीजें जो है, व्हाई वी आर लैकिंग इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज
वी आर अनअवेयर रिगार्डिंग दोज थिंग्स, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। हमें सिर्फ पता होता है कि 4 साल में सिर्फ हमें डिग्री पास आउट करना है, एचजीपीए सीजीपीए पे फोकस करना है एंड दैट्स ऑल, और फाइनल में हम डिसीजन लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती है, इसीलिए हम जो है वो बिहाइंड होते हैं। अगर आपने एक भी चीज इसमें से अगर कर ली या एक्सप्लोर अगर खुद को कर लिया तो you will have some better opportunities other than that, okay, और with connection to that, okay, जब आपको पता चलेगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती है, okay, जब आप वहाँ पे CSR वगैरह के इंस्टीट्यूट पे अगर आप ट्राई करते हो so that will be better for it. Then अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क ओके फाइनल ईयर का अगर इंडस्ट्री के साथ में भी करना चाहता है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू डेवलप द कॉन्टैक्ट्स खुद के बिल्ड नहीं करोगे, ओके, वेदर एनीथिंग, वेदर एनी करियर, ओके, तब तक के जो है आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो है पता नहीं चलेगा, वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चलेगा, ओके। सो अगर आपकी इंडस्ट्री में अगर अच्छे कॉन्टैक्ट अगर है तो फाइनल ईयर में भी आप जो प्रोजेक्ट पर है आप इंडस्ट्री के साथ में भी कनेक्शन में आप कर सकते हो, ओके। So again for that purpose you have to take the bona fide from your principal, okay, and then you have to apply. Then what are the most important thing that we have to develop in those 4 years, okay, we have discussed that, but again resource management and budgeting, that is the most important thing, and that I will come to know from various participation in various cultural activities, okay, such as gathering, okay, gathering भी एक प्लेटफॉर्म है कि आप उसको जो है ऑडियंस के सामने एक्सप्लोर करते हो किसी भी चीज में, किसी भी इवेंट में, ओके। सो ये भी आपके लिए जो है बहुत सारी बातें जो है ये सिखा के जाता है, ओके। वेरियस कल्चर इवेंट्स बहुत सारी बातें आपको सिखा के जाते हैं, ओके। देन अगेन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम यूटिलिटी, ओके। सो दोज थिंग्स विल कंटिन्यू। देन the most important thing is that in the final year you have to take the most important decision that whether I should work in the India, okay, I should build up my career in the India, whether or I have to go or I have to move towards the abroad, okay. So rather than the country also there are certain kinds of competitive examinations. By appearing those sort of competitive examination we can appear or we can apply for your PG, okay, in the abroad. That is the most important thing, okay. And in India also we can go for it, okay. Now this is the most important slide, okay. सभी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है ये इस स्लाइड में आपको मिल जाएगी आफ्टर यूर बी फार्मेसी, ओके। सो मैं फिर से आपको एक बात जो है आई हैव टू फोकस्ड ऑन द थिंग दैट you have to appear for the GPAT, okay. GPAT एग्जामिनेशन जो कि आप फाइनल में देते हो या फिर फाइनल ईयर जो है आपका एलिजिबल है और अपियरिंग फॉर द GPAT, ओके। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आगे ओपन हो सकती है, ओके। सो 500 मार्क्स की एग्जाम होती है, 125 क्वेश्चंस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ओके। देन आफ्टर योर GPAT you will go for the NIPER, okay. NIPER means National Institute of Pharmaceutical Research and Education, okay. So NIPER requires GPAT qualification, okay. अगर आप GPAT qualify हो then and then you have to apply for the NIPER, okay. अब सारी एग्जामिनेशन के बारे में जो है हम देखेंगे। Then you can also apply after B Pharmacy or during the B Pharmacy in the CSIR, okay. इसके लिए ग्रेजुएशन होना है और CSIR एग्जामिनेशन जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव जब होगी तब उसके बारे में देखेंगे, लेकिन उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, ओके। देन पीजी जो है आपका यू कैन गो फॉर द बिट्स बिलानी, ओके, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सॉरी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज अ रेनोन इंस्टीट्यूट फॉर द योर एम फार्मेसी। देन मणिपाल यूनिवर्सिटी, so you have to go for the entrance of your Manipal University for your PG, okay. And the most important thing is that आपको अगर M.Pharm नहीं करना है या फिर ग्रेजुएशन के बाद में if you have to appear for the, आपको अगर आते हो तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप MS कर रहे हो, PG मतलब आप MS इन फार्मेसी या फिर MS जो है कोई भी चीज़ में आप MS कर रहे हो, ओके। सो PG करने के लिए या फिर अब्रॉड में जाने के लिए आपको जो वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपको क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, ओके। सो व्हाट आर दोज एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू विल आल्सो सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड यू कैन अपीयर देन फॉर द PhD, ओके। सो अगर आपको जॉब नहीं करना है
पीजी भी आपका अगर हो गया है, आफ्टर योर पीजी यू कैन गो फॉर द पीएचडी। ओके, सो पीएचडी जितना आपको इजी लगता है उतनी इजी वो चीज़ नहीं है। पीएचडी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना ये भी जो है दैट इज द रियलिस्ट थिंग। ओके, पीजी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है आपको, तो एंट्रेंस एग्जाम भी आपको अच्छी क्वालिफाई वहाँ पे होना है। सो the most important thing regarding the various entrance examination that is your GPAT। ओके, GPAT के मैंने पहले आपको बोला है कि जो है 3 आवर्स की एग्जामिनेशन रहेगी। फाइनल या फिर थर्ड ईयर में भी आप इसको अपीयर हो सकते हो, लेकिन थर्ड ईयर का जो है आपका स्कोर काउंट नहीं किया जाएगा। फाइनल ईयर का जो स्कोर है आप फाइनल ईयर में जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ओके, देन इसका रजिस्ट्रेशन नवंबर मंथ में जो है, अक्टूबर या नवंबर में आता है, और बेसिकली एग्जाम जान या फेब में जो है वो होती है। और इसका सिलेबस जो है 4 ईयर का पूरा उसका सिलेबस होता है। देन बिट्स सेट, ओके, या फिर बिट्स बिलानी। सो एमफार्म अगर आपको करना है आफ्टर बी फार्म अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो बिरला इंस्टीट्यूट ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, सो ये भी आपको जीपैट क्वालिफिकेशन बनता है, उसके साथ साथ में आपको बिट सेट की एंट्रेंस भी जो है, ये पता नहीं होता है बहुत सारे जनों को, तो बिट सेट की एंट्रेंस भी जो है आपको यू हैव टू क्लियर आउट। ओके, so what are the questions, 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं। so you can go with this site and you can search with the bitset and then you will come to know। then मणिपाल यूनिवर्सिटी, ओके, अगर किसी को पीजी अगर मणिपाल यूनिवर्सिटी में करना है तो उसके लिए अलग से जो है वो एंट्रेंस होगी। ओके, एंड देन नाइपर एंड जी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाई हो देन एंड देन you will get the admission or opportunity to go for the NIPER examination, entrance examination, और पूरी इंडिया में there are the 7 renowned college for the NIPER। okay, so 7 कॉलेजेस में, क्योंकि पूरी इंडिया में जो 7 बेस्ट कॉलेज है फार्मेसी के लिए, एमफॉर्म के लिए, तो वहाँ पे आपको जो है एडमिशन आपको मिल जाएगी अगर आप नाइपर की एंट्रेंस क्वालिफाई करते हो। ओके, सो जीपैट आपको क्वालिफाई करना है, देन नाइपर के स्कोर पर आपको एडमिशन जो है वो 7 इंस्टीट्यूट में मिलेगी। ओके, देन देयर आर सर्टन बुक्स फॉर योर जीपैट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक बुक के आप पीछे मतलब हो जीपैट अगर आपको करना है तो। ओके, नंबर ऑफ बुक्स है, पेपर्स है प्रीवियस, उसको एनालाइज करो। ओके, एंड देन यू विल गेट सम आइडिया रिगार्डिंग योर जीपैट एग्जामिनेशन। सो what are the renowned institutes or top institutes for your M pharmacy? Okay, so Punjab University, Chandigarh, then your NIPER Mohali, okay, then IIT BHU Varanasi, and the most important institute that is the Institute of Chemical Technology ICT। okay, so इसके लिए आप देख सकते हो कि most of institutes में जो है you will need the GPAT entrance to be qualified। okay, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अगर आप GPAT क्वालिफाई है तो GPAT का एक बेनिफिट आपको होगा कि आपको स्टाइपेंड मिलता है फॉर योर कंप्लीशन ऑफ योर पीजी। ओके, सो जीपैट अगर आप क्वालिफाई है तो पहले 12,400 आपको जो है स्टाइपेंड मिलता था मंथली गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी जो स्टाइपेंड आपको मिलता है सो यू गेट द स्टाइपेंड नियर अबाउट 14,000 ओके पर मंथ। ओके, वेदर यू हैव टू टेक द एडमिशन, आपको जही कहीं भी एडमिशन लेना है, लेकिन आप अगर जीपैट क्वालिफाई हो तो कहाँ भी आप एडमिशन लो यू विल गेट द स्टाइपेंड। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अगेन बेनिफिट ऑफ दैट जीपैट। ओके, देन कोई इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल आईसीटी से अगर आप एमकॉम अगर करना चाहते हो तो आपको जीपैट का एक स्पेसिफिक स्कोर के बाद में भी आपका एक इंटरव्यू होता है। ओके, लेकिन फिर से बेसिक क्राइटेरिया आपका जीपैट। देन दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च दैट इज डिप्सार, ये भी जो इंस्टीट्यूट है वेल नोन इंस्टीट्यूट है। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओके, बीसीपी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी तो सबको पता है बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद में बिट्स पिलानी। ओके, so these are the some reputed and well-known institutes for your M pharmacy। okay, और यहाँ से that is the most important point कि if you have passed out from that top institutes, top research institutes, if you have passed your M pharmacy from those institutes, then definitely you will get the well package। okay, so up to 3 to 5 lakh you will get your starting packages। okay, and the most important thing is that whether you will go for the M.Pharm or do anything, but the most important thing you have to explore yourself, okay, regarding the opportunities। एक ही जगह पे आप बैठे मत रहो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 साल अगर आपने इंडस्ट्री में निकाला तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा 1 साल के बाद में, एंड देन
जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएगी वो लीव करके, एक इंडस्ट्री लीव करके जो आप जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हो, अगर यहाँ पे जो है आप अप्लाई वहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो आपको स्विच ऑन जो है करते जाना है, लेकिन पहले जो है स्टार्टिंग जो है आप कभी भी दिमाग में रखो कि स्टार्टिंग आपके लिए हमेशा कम रहेगी। ओके, लेकिन ये इंस्टीट्यूट से आप पास होते हो तो आपकी स्टार्टिंग जो है डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Then there are certain again institutes which accept your GPAT score. Okay, and then अगर एमफॉर्म की अगर बात में करना चाहूँ, सो एमफॉर्म मीन्स बीफार्म के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पास में होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बी फार्मेसी, वेदर यू फॉर टू मूव टू द जॉब. अगर आपको जॉब पे जाना है, जॉब अगर करना है, तो आपके पास में कोर फार्मा है और नॉन कोर फार्मा है. ओके, सो मैं इनको दो टाइप में आई विल डिवाइड the opportunities in terms of these two, core pharma and non-core pharma. So if I am talking regarding the core pharma, so it is typically your quality control, quality assurance, okay, regulatory affairs, okay, जो कि आपको फील्ड वर्क पे एनालिटिकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन, वहाँ पे जाके आपको जो है काम अगर करना है, सो दैट इज योर कोर फार्मा. एंड देन अगर मैं नॉन कोर फार्मा की बात करता हूँ तो इसमें आते हैं आपके CV, ओके, मींस क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, CDM, देन फार्माकोविजिलेंस, PV. ओके, ऐसे जो दो बाइफर्केशंस है आपको देखने को मिलेगी. ओके, आफ्टर योर बी फार्मेसी अगर आपको जॉब करना है तो ओके, देन अगर आपको योर PG के लिए अगर आपको जाना है, सो फॉर योर PG आपको एमफॉर्म में कौन से सब्जेक्ट है जो ऑफर होते हैं. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज योर फार्मास्यूटिक, जिसमें आप आपका एमफॉर्म कर सकते हो. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सीट्स बहुत कम होती है और कई की जगहों पर ये. देन मेडिसिनल केमिस्ट्री, ओके, इसमें भी बहुत लोग, कम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर फार्मा केमिस्ट्री में एमफॉर्म करते हैं. ओके, बट उनके लिए एकेडमिक्स के भी अलावा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज R&D सेक्टर में मैं कहूँगा कि होगी अगर आप एमफॉर्म फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री करते हो तो. ओके, देन क्वालिटी अश्योरेंस. ओके, एक आता है आपका क्वालिटी अश्योरेंस, देन फार्माकोग्नोसी, ओके, देन फार्माकोलॉजी, ओके, देन बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी बहुत कम जगहों पे जो है आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू बी इन माइंड कि इसमें से आपको अगर PG करना है तो कौन सा आपको ब्रांच जो है यू हैव टू सिलेक्ट फॉर द ब्रांच, उसको पर वही ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है. ओके, इन माय ओपिनियन इफ यू गो फॉर द QA, ओके, सो QA का जब आप करोगे, अगर केमिस्ट्री जब करोगे तो QA में आप जो है इंडस्ट्री के लिए भी सुटेबल रहोगे और एकेडमिक्स के लिए भी जो है आप सुटेबल रह सकते हो. ओके, या फिर जो जिस चीज में आपको स्कोप दिखता है आप उस चीज के लिए अप्लाई जो है आप कर सकते हो. ओके, देन सर्टन जो शॉर्ट कोर्सेस है वो भी जो है क्लिनिकल फार्मेसी के रिलेटेड, उसमें भी आप जो है इंटर हो सकते हो. ओके, सो जहाँ पे जो बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे अगर आपने अप्लाई अगर किया, ओके, so for that sector then you will have some better opportunities. Okay, then बात जब आती है कि MBA, ओके, सो फार्मेसी के या फिर बीफार्म के बाद में अगर मेरे दिमाग में आता है कि मुझे आई हैव टू गो फॉर द MBA, देन MBA अगर करना है तो दो टाइप में करते हो और हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि वेदर फार्मा MBA इज टू बी डन और वेदर आई विल गो फॉर द जनरल MBA. ओके, सो जनरल MBA की अगर बात में अगर करता हूँ, फिर से मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा कि MBA में आप कहाँ पे जाते हो, इससे और भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से MBA करते हो. ओके, विच इंस्टीट्यूट यू विल प्रिफर फॉर द क्वेश्चन जनरेट होता है कि जनरल और फार्मा MBA. तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा आप MBA कोई भी करो, लेकिन एक्सप्लोर करना जो है यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. ओके, सो आपको पता है कि फाइनेंस, ओके, देन ह्यूमन रिसोर्स, ओके, इसमें जब आप MBA करते हो, मार्केटिंग, ओके, सो यू विल डेफिनेटली गेट सम गुड पैकेजेस. Okay, and you will have some better jobs, okay, such as brand management, marketing, business consultancies, okay, financial and auditing, and you will have the position of head of various operation in multinational company also, and you can start your own entrepreneurship. Entrepreneurship means खुद का business जो है you can develop it. Okay, वैसे ही जब आप फार्मा MBA करते हो, okay, then फार्मा MBA के लिए कौन से इंस्टीट्यूट से आपको देखना है, उसमें भी जो है आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है. और अगर आप अच्छे कॉलेजेस से अगर MBA करते हो, सो यू विल गेट सम गुड जॉब एट द पैकेजिंग मोर देन 3 or 4 का पैकेज जो है यू विल गेट. ओके,
So the project management, you will get the job or opportunity as a team head, team leader, or as a project management leaders in the various clinical trials and R&Ds. Okay, इसीलिए आप एक्सप्लोर खुद को कैसा करते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Okay, then you will have the entrance examinations, so general entrance examinations for the MBA that you will have to know. That is the CAT, CMAT, ZAT. Okay, so इनकी प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल MBA के लिए अगर आपको जाना है तो MBA के लिए जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसकी जो प्रिपरेशन है, इवन आपकी जीपैट की जो प्रिपरेशन है, मेरे ख्याल से आपको थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. थर्ड ईयर से आप क्लासेस में इन्वॉल्व हो जाओ या फिर नेट पे सर्च करो, गूगल आउट करो, वीडियोस देखो. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ कि आपका स्कोर जो है थर्ड ईयर से पढ़ाई करने के बाद में आपको थर्ड और फाइनल 2 साल आपको मिलते हैं. ओके, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन रहेगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कोई भी, ओके, कोई भी ले लो. सो इफ you have the question paper analysis is well, your question and paper analysis, your question and paper analysis is well controlled. Okay, आप समझ चुके हो कि ये क्वेश्चन आते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस है आपके पास में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, देन डेफिनेटली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो. ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यू हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. ओके, व्हाटएवर द एग्जाम इट मे बी. ओके, देन अगर फार्मा MBA है तो मिडकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन IIBM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो हाई जीपैट, नायपर, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन फार्मा MBA के लिए जो है हम बोल सकते हैं. ओके, या फिर कोई भी अगर इंस्टीट्यूट उसकी खुद की एंट्रेंस अगर बोल रहा है, so that is important. और जनरल MBA के लिए अगर आप जाते हो तो आपको सैट, सीमैट, ओके, कैट जो है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जैसे जो है पेपर्स में आपसे पूछा जाता है, सो उसके भी लिए आपको प्रिपरेशन जो है थर्ड ईयर से कर देना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट पर्पस RS अग्रवाल इज द बुक, वेल नोन बुक है. ओके, उसको भी लेके आपको जो है वो आपको चलना है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट is the biotechnology and some MTech MSc specialization. ओके, सो इनमें जो है, इनमें हमारे फार्मेसी के बहुत कम जो कैंडिडेट्स है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर बायोटेक में आपने अगर कोई कोर्स किया है या फिर PG किया है आफ्टर यूर बी फार्मेसी, ओके, तो इसके लिए वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल गेट वगैरह. इसके बारे में हम देखेंगे कि गेट और जीपैट में बोलूँगा कि आपको जो है फार्मेसी के लिए जीपैट इम्पोर्टेंट है. ओके, सो गेट इज द ओनली एग्जामिनेशन फॉर द इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्निकल फील्ड्स. लेकिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे किया है हमें, सो बायोटेक्नोलॉजी में आपको अगर फील्ड में जाना है, बहुत कम लोग इस फील्ड में जो है दे विल एंटर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बट अपॉर्चुनिटीज द स्कोप इज लिटिल बिट मोर. मैं बोलूँगा कि अगर आप अच्छे R&D सेक्टर में या रिसर्च सेक्टर में अगर बायोटेक्नोलॉजी के भरोसे पे अगर जाते हो, you get a good packages. So इसके जहाँ पे बहुत कम जाते हैं वहाँ पे भी आप अपना जो है आप डेफिनेटली कर सकते हो. ओके, इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ओके, इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी डेवलप. अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एनिमल ब्रीडिंग एंड एक्वाकल्चर. इन के बारे में हम आपको पता नहीं है. अगर जिनमें आपने MTech किया, I'm taking biochemistry and that fields, so maybe आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है आ सकती है. अभी आप डायबिटीज के लिए भी मेडिकेशन देखोगे या फिर कैंसर के लिए भी आप मेडिकेशन देखोगे. जेनेटिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च नाउ. तो इस पे बहुत सारे डिसीजेस पे जो है हम मेडिकेशन जो है वो प्रोफेसर अभी कर रहे हैं. इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इस पे करियर अपॉर्चुनिटी क्या है आप बोला करो, ये चीज देखो आपकी इसमें जो है कि हाउ कुछ then yes, now we are talking regarding what are the examinations you can go after you are a B pharmacy or you are doing a B pharmacy. So important मैं कहूँगा अभी CSR और UGC NET. ओके, तो CSR जो एग्जामिनेशन जो होती है that will be और एक जो एग्जामिनेशन होती है that will be in the June and another examination होती है that will be in the December. Okay,
और CSR में बहुत सारे सब्जेक्ट्स। ओके, सो CSR क्यों देना या फिर क्यों हम दे सकते हैं? सो बेसिक पार्ट इज दैट कि CSR अपीयर होने के बाद में यू विल गेट द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, मतलब आप अगर PhD करना चाह रहे हो या फिर रिसर्च वर्क करना चाहते हो, ओके, और आपको अगर स्टाइपेंड अगर होना है, ओके, सो आप CSR अगर दोगे तो यू विल गेट द जूनियर फेलोशिप ऑफ नियर अबाउट 30,000 पर मंथ। ओके, अप टू योर कंप्लीशन आपको जो है पीरियड दिया जाता है 2 या 3 साल। ओके, सो इस 2 साल में जो है, इस 2 साल में आपको CSIR से फंडिंग मिलती है। ओके, 2 साल तक आपको जो मंथली फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको मिलती है, और 30,000 मिलने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उस जूनियर रिसर्च फेलोशिप का कन्वर्जन सीनियर रिसर्च फेलोशिप में होता है। मतलब वही जो है आपको नियर अबाउट 40,000 तक डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट आपको फेलोशिप वहाँ पे मिलती है। आप कहीं पे भी वर्क करो, ओके, आप कहीं भी एडमिशन लो, कहीं भी वर्क करो, लेकिन आप CSR अगर क्वालिफाइड हो एंड आपके रिज्यूम में अगर दिख रहा है कि यू आर CSR क्वालिफाइड, सो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। ओके, मतलब यूर CV, अब रिज्यूम की अगर बात करूं मैं, तो रिज्यूम में भी जो है आपको अपीयर होना है, रिज्यूम जो है आपका बनाना है आपके 3rd ईयर से। फिर रिज्यूम भी कैसे होना चाहिए आपका, ये भी आपको चीजें सीखना है। इंटरव्यू स्किल कैसे होनी चाहिए, ये भी जो चीजें है यू हैव टू डेवलप इन दोज 3rd एंड फाइनल ईयर। ओके, सो CSR के बारे में बोला आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसका कन्वर्जन आगे चल के सीनियर रिसर्च फेलोशिप में होता है। आप कहीं भी वर्क करो, आप सिर्फ रिसर्च प्रपोजल लिखो दो, वो आपका एक नॉमिनल इंटरव्यू जो है इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जो है आपको सिलेक्ट करेंगे। ओके, मीन्स आपको फेलोशिप जो ऑफर करेंगे। ओके, सो आपको 2 साल में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको देना है। ओके, एंड यू हैव टू आल्सो गेट, यू कैन गेट योर PhD। ओके, so that is the importance of the CSIR, that is the Council of Scientific Research Industrial Research। okay, देन एक फायदा CSR का और है कि आपको लेक्चरशिप के लिए, ओके, अब फार्मेसी फील्ड में इतना डेवलप चीज नहीं है, लेकिन आप LS अगर आप उसमें से ऑप्शन एक सिलेक्ट करते हो, ओके, सो लेक्चरशिप के लिए भी जो है उसका आपको बेनिफिट रहेगा इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ओके, लेकिन अब कितना एप्लीकेबल है फार्मेसी के लिए उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यू हैव सम बेनिफिट। Then the most important point is that the Tata Institute of Fundamental Research, okay, ये भी जो है ये PhD के लिए, okay, if your M pharmacy or if your PG, if you will have to appear for your PhD, okay, so PhD के लिए हमें पता है कि मैं बोलूँगा कि GPAT, मैं फिर से बोलूँगा कि GPAT आप क्वालिफाइड होना है, ओके, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी की टेट एग्जामिनेशन जो है आपको देना पड़ता है फॉर योर PhD। ओके, या फिर जो ऐसे वेल नोन इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है फॉर योर PhD, तो आपको वैसे जो एग्जाम है क्वालिफाई पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, दैट इज TIFR। ओके, देन सम ऑफ द फेलोशिप्स, ओके, सो DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्पायर फेलोशिप, इनसे आपको क्या होता है कि ये जो फेलोशिप्स है यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल जो आपको भेजना पड़ता है। ओके, सो देन दे विल सिलेक्ट यू आफ्टर योर इंटरव्यू एंड देन दे विल ऑफर द फेलोशिप। ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप फेलोशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल AICT, फॉर एग्जाम्पल योर DST। ओके, सो इन चीजों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। Then the most important thing is that your PhD. Okay, so you will have the career options after your PG, that will be PhD। और PhD के बारे में मैं शायद से बोल चुका हूँ कि PhD भी जो है आप फुल टाइम करना चाहते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। लेकिन PhD के बाद में, ओके, आप खुद को कैसा एक्सप्लोर करते हो, दैट विल डिटरमाइन योर पैकेज। ओके, PhD भी कहाँ से करते हो, PhD का आपका टॉपिक कौन सा है, ओके, वेदर द टॉपिक इज रियली बेनिफिशियल और नॉट, इट इज पेटेंटेबल और नॉट, ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती है आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। ओके, सो मैंने PhD के लिए आपको पहले ही बोला था कि आपका GPAT होना बहुत जरूरी है। आप GPAT अगर है तो आपको एग्जामेशन मिल जाएगा फ्रॉम द पेड एग्जामिनेशन। ओके, देन बिट्स पिलानी की अलग एंट्रेंस होती है, नाइपर की अलग एंट्रेंस होती है। ओके, सो ICT, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ओके, मुंबई, इसके लिए भी अलग से एक आपकी एग्जामिनेशन होती है, आपका इंटरव्यू होता है। ओके, और यहाँ से अगर आप PhD करते हो तो डेफिनेटली
it will include impact in your resume or your CV. Okay, then इसके बारे में हमें पता नहीं होता। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि मास्टर्स इन द अब्रॉड। ओके, आफ्टर यू आर कंप्लीटेड योर बी फार्मेसी, इफ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स योर अब्रॉड। ओके, सो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज अलग अलग कंट्री में जो है, ओके, सो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको जीआरई नाम की जो एग्जामिनेशन है, दैट इज ग्रेजुएशन रिकॉर्ड टेस्ट। ओके, ये जो है यू विल हैव टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। ओके, एंड फॉर दैट पर्पस you have to, if you are going for the GRE, okay, GRE अगर आपने क्वालिफाई कर ली, ओके, सो GRE, TOEFL, IELTS, ऐसे 3 एग्जामिनेशन इसके बारे में हम देखेंगे जो आप क्वालिफाई करना है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हेन यू विल अपीयर फॉर योर पीजी इन द अब्रॉड, एट दैट टाइम आपको हमेशा सर्च में होना चाहिए कि आपको वहाँ पे फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप मिले, ओके, या फिर आपको वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंटशिप मिले, आप वहाँ पे लेक्चरशिप कर सको अलॉन्ग विथ योर पीजी। ओके, ऐसी यूनिवर्सिटी जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपका खर्चा भी जो है वहाँ पे डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड द मनी, ओके, एंड यू विल गेट द मनी in form of your fellowship or scholarship. Okay, so you will have to look for such university that will offer you the teaching assistantship or scholarship. Okay, so what are the examinations? अब्रॉड जाना है तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ जीपैट तो क्वालिफाई होना जरूरी है, लेकिन जीपैट के अलावा जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है आपको रिकमेंड करेगी कि अदर, मैं इंडिया के बाहर बोल रहा हूँ, ओके, इंडिया में भी और इंडिया में के बाहर जो आपका जब अपॉर्चुनिटीज है तो यू हैव टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is your graduate record test, that is your GRE. Okay, then TOEFL, that is test of English as a foreign language. Okay, and then IELTS, that is International English Language Testing System. Okay, अब ये जो सारे एग्जामिनेशंस है, ये एग्जामिनेशंस, इनमें देखो अगर क्यों है एग्जामिनेशन, दैट विल टेस्ट योर इंग्लिश फ्लुएंसी, दैट इज टेस्ट योर इंग्लिश स्किल्स। ओके, आप कितनी आपकी रीडिंग पावर अच्छी है, okay, कितनी लिसनिंग पावर है, कैसी स्पीकिंग पावर है, कैसी राइटिंग पावर है। ओके, सो ऑल दैट थिंग्स आर टेस्टेड बाय दिस एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। okay? थर्ड या फाइनल ईयर में ही, थर्ड ईयर में आपको इसकी जो है प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देना होता है, क्योंकि अगर आप जीआर की बात करोगे तो उसमें वर्बल रीजनिंग, ओके, एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मींस आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ में आपको जो है एनालिटिकल राइटिंग भी जो है ये आपको कंसेप्ट आपको समझना पड़ता है, उसकी प्रिपरेशन करना पड़ता है, आपकी लिसनिंग स्किल को आपको डेवलप करना पड़ता है, रीडिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है अलॉन्ग विद द राइटिंग स्किल। और इसके लिए फिर 340 मार्क्स की आपकी जीआरई जो है, जीआरई की एग्जामिनेशन जो है होती है। ओके, और उसका जो स्कोर है, जीआरई का जो स्कोर है आपका, इट विल डिटरमाइन योर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीजी एग्जामिनेशन। ओके, सो इसके लिए भी क्लासेस होते हैं, ये भी एग्जाम ऑनलाइन होती है, 340 मार्क्स की एग्जामिनेशन है। ओके, सो देन नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज टोफेल एंड आईएलटीएस। ओके, इसी तरीके की जो एग्जामिनेशन है, टोफेल में आपका रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग चेक किया जाता है, फिर जीआरई में आपका ग्रामेटिकल नॉलेज, दैट इज वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल राइटिंग, ये सारी चीजें जो है आपकी टेस्ट की जाती है। ओके, होती है एमसीक्यू बेस पे, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होती है, एमसीक्यू भी हो गए और एमसीक्यू के साथ साथ में और सारी मॉडिफाइड स्किल जो होती है एग्जामिनेशन में होती है। ओके, सो ये सारी चीज़ों को क्रॉस आउट करने के बाद में डेफिनेटली जो है आपको एमएस के लिए आप अपीयर होगे, एमएस करने के बाद में डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड पैकेजेस, एक्चुअल पैकेजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमएस। देन jobs for B pharmacy graduates. Okay, so that is another important thing, that after your B pharmacy, what are some government jobs and what are the regular jobs or the core pharma jobs that you will get after the completion of your B Pharm. Okay, so आप हमेशा एक बात जो है आप ख्याल में आपने रखना चाहिए कि मेरा CGPA जो है वो 7 के ऊपर या फिर फर्स्ट क्लास में जो अपनी डिग्री जो है वो निकलनी चाहिए। ओके, इस पे आपको सिर्फ एक बात पे आपको फोकस आउट जो है आपको करना है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अभी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर बी फार्मेसी, सो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका क्वालिटी कंट्रोल। ओके, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में सबको पता होगा, मैं इसमें ज़्यादा डीप जो है नहीं जाऊँगा। कैप्सूल, सिरप, जो भी पैरेंटल्स है, इसका प्रोडक्शन बेसिक पैकेजेस आफ्टर बी फार्मेसी आपको नियर अबाउट 8,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छी इंडस्ट्री है तो नियर अबाउट 12,000 आपको सैलरी देगी। ओके, देन
दैट इज योर क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी। ओके, अब मैं एक चीज वहाँ पे आपको बोलूंगा कि क्यूसी जो है इट विल बी फॉर द टेस्टिंग। ओके, टैबलेट, कैप्सूल, ओके, इसकी जो आप टेस्टिंग करते हो, इवैल्यूएशन जो करते हैं, ओके, टैबलेट है तो उसका हार्डनेस, फायबिलिटी, ओके, ये सारी चीजें जो है क्यूसी में वहाँ पे की जाती है। ओके, देन क्वालिटी एश्योरेंस, यस दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके लिए जो है एमकॉम क्यूए की ज्यादातर डिमांड है। सो क्वालिटी एश्योरेंस आपको रिक्रूटमेंट किया जाता है एज ए इन प्रोसेस कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, आईपीक्यू ऑफिसर या फिर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की आपकी पोस्ट जो है, या आपकी पोस्ट होगी, आपको होगी तो नियर अबाउट 2 से ज्यादा आपको पैकेज जो है ऑफर करेगी स्टार्टिंग में। ओके, और क्वालिटी एश्योरेंस वाले का काम होता है कि क्वालिटी कंट्रोल ने जो वर्क किया है उसको जो है उसको एनालाइज करना। ओके, और आपको जो है वेरियस सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस जो है, जीएमपी गाइडलाइंस, ओके, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से जो है टेस्टिंग करना, दैट इज द वर्क ऑफ योर क्यूए। ओके, एंड डेफिनेटली क्यूए के भी अच्छे पैकेजेस है, आप 2-3 साल अगर निकालते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड पैकेजेस। देन नेक्स्ट फील्ड है फॉर्मुलेशन, F&D, दैट्स द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छी एक जो फील्ड है हम वहाँ पे बोल सकते हैं। स्टार्टिंग पैकेजेस भी वहाँ पे, एक्चुअल रिसर्च आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। जो नए नए ड्रग्स आते हैं उनके ऊपर जो है आपको काम करना पड़ता है। ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ योर R&D फील्ड। एंड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट अगेन 2 फील्ड में आपको 3 का पैकेज, 2.5 का पैकेज भी जो है वो ऑफर हो सकता है। देन एनालिटिकल डेवलपमेंट, ओके, एनालिटिकल डेवलपमेंट भी में भी आपको 12 से 18,000 का पैकेज है स्टार्टिंग जो है आपको मिलता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज द रेगुलेटरी अफेयर्स। ओके, अब जो ये बात कर रहे हैं हम, ये सभी बात कर रहे हैं कोर फार्मा की एग्जैक्ट, जिसमें फील्ड वर्क आप जो है आपको वहाँ पे करना पड़ता है कंपनी में जाके। ओके, सो रेगुलेटरी अफेयर्स नोन एज आरए, आरए का काम होता है कि जो ड्रग्स होते हैं, ओके, इनका सारा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इट्स रिजल्ट्स, सभी जो चीजें डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आरए के पास में जमा होता है। और रेगुलेटरी अफेयर्स जो है वो एफडीए तक ये डॉक्यूमेंट जो है पहुंचाता है। ओके, सो सारे ये डॉक्यूमेंट्री जो काम होते हैं ये सारे होते हैं रेगुलेटरी आरए डिपार्टमेंट के। ओके, और ऑफिस वर्क हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको ऑफर होता है आरए में एंट्री करना या फिर एंट्री मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ओके, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटीज टू गो फॉर द अब्रॉड, ओके, बाय योर रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। आप कैसा वर्क करते हो, कैसा एक्सपीरियंस जो उसमें गेन करते हो। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस हमेशा गेन जो है करते रहना चाहिए। 1-2 साल, 2-3, एक आध 2 साल आपने एक कंडीशन में निकाले, ओके, देन देयर विल बी द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू गो विथ सम बेटर थिंग्स। ओके, देन अभी जो बात है दैट इज योर मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग सभी को पता है कि बीकॉम के बाद में अच्छे पैकेजेस, अच्छा जो पैसा है, क्योंकि कंपनी सबसे ज्यादा जो उनका जो खर्चा करती है दैट विल बी ऑन द मार्केटिंग। ओके, इट स्पेंड इट्स मनी ऑन द मार्केटिंग। ओके, सबसे ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा होगा, और मार्केटिंग में आपको अगर अच्छी कंपनी अगर मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मैनकाइंड, ओके, सिप्ला, जो भी कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज है, जॉनसन एंड जॉनसन, तो डेफिनेटली आपका स्टार्टिंग पैकेज ही कम से कम 2 से आपका ज्यादा रहेगा। ओके, मीन्स मंथली सैलरी भी अच्छी कंपनी हो तो 35 से 40,000 तक आप सैलरी जो है आप गेन कर सकते हो अगर अच्छी कंपनी है तो। ओके, एंड उसके बाद में भी आपको अलग से इंसेंटिव मिलते हैं। ओके, सो मार्केटिंग भी जो है अच्छी फील्ड है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको एक बात है कि आपको फील्ड वर्क जो है आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो मार्केटिंग के बेसिस पे मैं आपको एक जो है एक जो फील्ड बताऊंगा दैट इज द प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, दैट विल बी योर पीएमटी। ओके, पीएमटी के लिए आपका पीजी या फिर एमबीए होना बहुत जरूरी होता है। ओके, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम का काम है कि जो प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग करते हो, ओके, उसमें रिसर्च करना कि मार्केटिंग जो है किसी चीज की मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ पीएमटी। और पीएमटी बिलीव मी कि पीएमटी में अगर आप एक बार अगर एंटर हुए तो आपका पैकेज जो है बहुत अच्छा वहाँ पे आपको मिलेगा अगर आप पीएमटी के लिए अगर अपीयर होते तो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। बट उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है विल बी वेरी प्रॉपर, क्योंकि आपको फॉरेन कस्टमर जो है यू विल हैव टू हैंडल दैट फॉरेन कस्टमर्स आल्सो। ओके, सो मार्केटिंग एनालिसिस जो काम होता है दैट विल बी द वर्क ऑफ योर पीएमटी डिपार्टमेंट। ओके, so these are the things
और these are the core pharma jobs. Okay. Then नॉन कोर फार्मा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा या फिर बॉयज़ के लिए भी आप बोल सकते हो कि जिनको कोर फार्मा में अगर नहीं जाना है, ओके, सो दैट पर्सन्स कैन एंटर इन द पीवी, ओके, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट और मेडिकल कोडिंग। ओके, नाउ पीवी में आपको टीसीएस अगर है तो आपको 1.8 जैसा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके, और कॉग्निजेंट जैसे दो कंपनी टीवी और क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट जैसे जॉब जो है ऑफर करते हैं आपके डी फार्मेसी। ओके, सो ये काम किसके लिए होता है? फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट ये वर्क होता है कि जो नए नए ड्रग्स पे क्लिनिकल ट्रायल चलती है, ओके, और जो क्लिनिकल ट्रायल के जो स्पॉन्सर्स जो है, ओके, जो स्पॉन्सर्स विच आर फंडिंग, विच आर प्रोवाइडिंग सम फंड्स फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, सो यू हैव टू review the data which is obtained from those clinical trials. Okay, for example, क्लिनिकल ट्रायल का एक सेंटर है और वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, नए ड्रग का एक्सपेरिमेंट चल रहा है ह्यूमन बींग्स पे। ओके, सो कितने बजे आपने डोज दिया, पेशेंट को कौन सा नया ड्रग होता है तो कौन सा साइड इफेक्ट है क्या, ओके, एडवर्स कोई इफेक्ट उसको हो रहा है क्या, तो सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है इट विल बी बाय द क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट और द फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ओके, बट you will get some good packages after having the entry in your clinical data management. Okay, near about आपने 2 या 3 साल निकाले तो 35 से 40,000 तक जो है आपको मंथली जाएगा। ओके, इससे भी अच्छा आप जा सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी। ओके, सो पीवी और क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट these are the non core pharma sectors where you can enter. Then the most important thing is that is your medical coding. Okay, बहुत सारी जो कंपनीज होती है मेडिकल कोडिंग ऑफर करती है। इसका मतलब जो है अगर कोई पेशेंट्स को इफ इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज और डिसऑर्डर तो उसके सिम्टम को या फिर उसके डिसीज को किसी स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद में फार्मासिस्ट के पास में जो है, ओके, वो कोड जो है जो आप एम्प्लॉय उसके पास भेज जाते हैं, वो उस कोड को एनालाइज करता है, पढ़ता है और उसके ऊपर से डाटा जो है वो रिव्यू करता है। ओके, सो I will not go in the very detail about that medical coding, but this field 1.8 का स्टार्टिंग पैकेज आपको मिलता है। ओके, अब इस मेडिकल कोडिंग में अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कुछ है। ओके, सो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने के बाद में और भी ज़्यादा अच्छे पैकेजेस आपको मेडिकल कोडिंग जैसे फील्ड में मिलते हैं। ओके, सो गिव से कंपनी है मे बी इन औरंगाबाद, तो वहाँ पे जो है मेडिकल कोडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। ओके, सो एमफार्म वालों के लिए सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो मैं आपको बोलूँगा कि पीजी व्हेन यू विल गो फॉर योर पीजी, व्हेन यू विल गो फॉर योर बी फार्मेसी के बाद में व्हेन यू विल गो फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, और सेम बंदा बी फार्म के बाद में भी जा रहा है और एक जो कैंडिडेट है आफ्टर योर एम फार्म करके जा रहा है। ओके, सो हमारे एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एम फार्म करने के बाद भी वी हैव सम सेम पेमेंट पे वर्क कर रहा है और बी फार्म होने के बाद में भी सेम पेमेंट वर्क कर रहा है। लेकिन एक बात दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि अगर आपका पीजी अगर कंप्लीट है तो प्रमोशन लेने में उसको थोड़ी तकलीफ जाएगी, लेकिन आपको डेफिनेटली तकलीफ जो है नहीं जाने वाली। ओके, सो इफ यू हैव टू डू योर पीजी whether it may be M.Pharm or whether it may be MBA, okay, so you'll have to complete it in a regular way, that is just after your B.Pharm. Okay, don't waste your 2 or 3 years in the some of the marketing or other sector job. Okay, then it is very difficult for you to come up again. Okay, so better way is that you have to go with your graduation or sorry you have to go for the post graduation in a regular way. Okay, सो डेफिनेटली पीजी के बाद में आपको प्रमोशन के लिए डेफिनेटली जो स्कोप है वो अच्छा रहेगा। ओके, सो देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड इज दैट जो हम हमेशा निग्लेक्ट आउट करते हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ योर एकेडमिक्स। ओके, सो एकेडमिक्स में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट विल बी योर प्राइवेट एंड अनदर पार्ट विल बी द गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, सो गवर्नमेंट सेक्टर अगर आपको ज्वाइन करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में यू हैव टू गो फॉर द एमपीएससी और यूपीएससी फॉर द ज्वाइन एज लेक्चरशिप इन द डिप्लोमा कॉलेजेस और इन द डिग्री कॉलेजेस। ओके, लेकिन उसके लिए अभी के हिसाब से यू हैव टू कंप्लीट योर पीएचडी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट इज बेटर टू हैव योर पीएचडी फॉर द डिग्री। ओके, बट अगर आपका पीजी भी है तो आप
डिप्लोमा कॉलेज पे गवर्नमेंट लेक्चर करके जो है आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन 2 या 3 साल में उसकी पोस्टिंग जो है कम वहाँ पे निकलती है। ओके, देन प्राइवेट में अगर आपको जॉब करना है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, ओके, सो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको जॉब अगर करना है, सो आपके जो आर्टिकल्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, पहले तो आपको यू हैव टू कंप्लीट योर पीएचडी एंड देन पब्लिकेशंस। ओके, आप थर्ड ईयर से या फिर फाइनल ईयर से आदत लगाओ कि आपके पब्लिकेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए। जितने आप नंबर ऑफ पब्लिकेशन आपके करोगे उतना it will be beneficial for you in your CV or resume. Okay, so you are mostly preferred by that particular institute. Okay, so ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, so उसमें भी जो है आप अपॉर्चुनिटीज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप डी फार्म के बाद में जो गवर्नमेंट जॉब्स आपको रहेगी दैट विल बी यूर जिला परिषद फार्मासिस्ट, महाराष्ट्र के ऊपर आप बात करोगे तो। ओके, देन यू कैन से द हेल्थ डिपार्टमेंट का फार्मासिस्ट। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ओके, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मतलब गवर्नमेंट वाला। ओके, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अपॉर्चुनिटी जो जगह निकलती है गवर्नमेंट की, ओके, उसकी एग्जामिनेशन होती है स्पेशल। ओके, तो आपको कंटिन्यूसली सर्च में रहना है कि कौन से एग्जामिनेशन हो रहे हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ओके, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसकी जगह निकलती है। ओके, देन विल हैव द अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे। ओके, देन we'll have some more opportunities as a hospital and community pharmacist. Okay, so government jobs पे भी जो है आपको फोकस करना है। ओके, सिलेबस क्या होता है एग्जामिनेशन रेलवे फार्मासिस्ट का। ओके, देन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का गवर्नमेंट की जो जगह निकलती है यू आर 4 ईयर सिलेबस और सिंपल सिंपल होता है। आप अगर थोड़ी बहुत आपने कम से कम 2-3 महीने भी अगर अच्छी पढ़ाई की, ओके, देन यू विल गेट दैट पोस्ट। ओके, और स्टार्टिंग पैकेज आपको मिलता है नियर अबाउट 25,000 to 30,000। ओके, कॉन्ट्रैक्ट भी आपका नहीं होता है, डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट जो मिलती है। ओके, सो बेटर वे कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मत करो। सो अगर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी की जॉब अगर कर रहे हो तो, क्योंकि एक भी होता है कि NHRM में पोस्टिंग होती है, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, 17,000 आपको मिलते हैं। ओके, सो ऐसे भी सारे जो अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में जो है होती है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यूर ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, और द पोस्ट ऑन द इंडियन फार्माकोपिया और द पोस्ट ऑफ ड्रग कमिश्नर। ओके, सो ऑल दिस पोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सभी के लिए जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रग इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 या 3 साल में उसकी पोस्टिंग निकलती है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग जो है एग्जामिनेशन होती है। ओके, यूपीएससी भी हो सकती है इसके लिए। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एज ए ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट, अलग पोस्टिंग है। गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम होता है कि सैंपल का टेस्टिंग करना, गवर्नमेंट एनालिस्ट की भी पोस्ट होती है। और ड्रग इंस्पेक्टर इफ यू हैव द नॉलेज सो will be better for you to be the drug inspector. तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए यूपीएससी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होती है, क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें जनरल क्वेश्चन पेपर होता है और एक जो होता है वो फार्मेसी पे बेस्ड है। ओके, जनरल में सिर्फ आपको थोड़ा जीके और कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन जो मेन पेपर होता है इट विल बी ऑन द 4 ईयर्स फार्मेकोलॉजी। ओके, पे भी उसके क्वेश्चंस होते हैं। एंड द बेसिक क्राइटेरिया इज दैट यू हैव टू कंप्लीट द 3 ईयर्स मिनिमम। आपको मिनिमम एक्सपीरियंस अगर है तो 18 मंथ्स का होना चाहिए। बी फार्म के बाद में 3 साल और एम फार्म के बाद में आपको मिनिमम 18 मंथ्स का टेस्टिंग में। ओके, या फिर अभी अमेंडमेंट्स नई हो रही है उसमें, या फिर R&D सेक्टर में भी, लेकिन पर्टिकुलर में बोलूँगा कि ड्रग टेस्टिंग में स्पेशली शेड्यूल C का प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द टेस्टिंग क्या उसका एक्सपीरियंस हमें चाहिए। ओके, सो देन यू विल अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ योर ड्रग इंस्पेक्टर। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ड्रग कमिश्नर है इंडियन फार्माकोपिया की जैसी पोस्टिंग के लिए। ओके, सो आपको एक्सपीरियंस चाहिए सैंपल टेस्टिंग का या फिर ड्रग टेस्टिंग का। ओके, सो उसमें अगर आपने 1 या 2 साल अगर 2 साल मिनिमम निकाल लिए और फिर से आप वापस अपने स्टडी पे आपने फोकस आउट किया, सो आपको एक अच्छा जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब जिसकी सैलरी नियर अबाउट 40,000 to 45,000 स्टार्टिंग होती है, सारी जो फैसिलिटीज है आपको मिलती है, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सो these are the गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। एंड देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्रग इंस्पेक्टर
hospital pharmacist, okay, government analyst, railway pharmacist, okay, and then जो मिलिट्री सर्विसेज है, ओके, उसके लिए भी जो है फार्मासिस्ट की जगह जो है वो निकलती है, ओके. सो यू हैव टू कंप्लीटली लुक आफ्टर इन दैट पोस्टिंग्स, ओके, एंड यू हैव टू अप्लाई. सो बेसिक सारी चीज़ों का एक जो कंक्लूजन में निकालूँ, तो 4 साल का सिलेबस पे ही जो है क्वेश्चन पेपर मेरे बेस्ट होते हैं. आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा, अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के पेपर से उसमें मराठी व्याकरण भी पूछा जाता है, ओके. इसको क्या क्या पूछते हैं इसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं, ओके. इसके अलावा ईएसआईसी फार्मासिस्ट की भी एग्जामिनेशन वहाँ पे होती है, ओके. सो ईएसआईसी फार्मासिस्ट भी है, तो उसके लिए फिर कौन से वहाँ पे क्वेश्चन पेपर से उसमें क्या क्या पूछा गया है, तो इसका भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है उसके बारे में जो हमें पता वहाँ पे करना होता है, ओके. सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. uh, Along with that, there are the opportunities after your B Farm, after your graduation in banking sector. Okay, so banking sectors के लिए भी जो है क्लासेस जो है आप लगाओ. बैंकिंग सेक्टर में बच्चे अपॉर्च, ऐसा नहीं है कि आप फार्मेसी आपने किया so whether you will go for only the pharma sector, you will enter only the pharma sector. No, it is not true. You can also enter in the remaining sectors also. Okay, so banking sector के लिए भी आपको जो है वो अच्छा स्ट्रगल करना पड़ता है. रेलवे जॉब्स भी होते हैं, ओके. इसके अलावा अगर कोई एमपीएससी या यूपीएससी ले जाना चाहता है तो मैं डेफिनेटली उसको सजेस्ट करूंगा. उसने जो उसकी जो प्रिपरेशन है वो कम से कम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से जो है आपको स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट योर टाइम विल नॉट गेट वेस्टेड आफ्टर योर बी फार्म, ओके. फिर उसके बाद में आपको गैप लेनी है तो 1-2 साल की आप ले सकते हो, लेकिन आप पोस्ट जो है हायर करोगे डेफिनेटली, ओके. सो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ही इन चीजों पे जो है आप फोकस आउट करो, सो दैट यू गेट द गुड पोस्टिंग एंड गुड अपॉर्चुनिटीज, okay. So that are the, again, the opportunities in the teaching, okay. So start up होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर से, ओके, देन एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, प्रिंसिपल, ओके. सो इतना भी इजी नहीं है जितना मैंने आपको बोला है, लेकिन नियर अबाउट 1 to 2 lakhs जो आपको पैकेज है प्रिंसिपल का भी होता है, एंड you will get that opportunity, okay. So basic criteria is that how you will develop yourself, how will you create yourself, that is the most important thing, okay. Hope so this short introduction regarding the various career opportunities, okay, will make the changes in you, and you will have, or you will grab some more opportunities, okay, with you. Thank you. So